महाराष्ट्र में कि मिल के रहो, इंसानियत के साथ रहो, अच्छाई के साथ रहो, उस भगवान को मानो और उसके अच्छे काम करो, जो अच्छी चीजें हैं उनको जमा करते रहे, उसका प्रचार करते रहे। I used to speak very, not very fluently. You are shrewder and smarter than I thought you are. हम की जात जानता हूँ, मच्छे जल पावे की, पाबो की, मच्छे जल। I was obliged by my conscience to state the innermost feelings of my heart, because being an artist and having received an award for whatever humble efforts that I have made, I thought that I may just say a few words and also speak of the conscience that fills our hearts, and I am sure the hearts of many of you who are here, that this country be one country, that this talk of unity and the talk of the amity of this country and of its greatness and of its progress, it only carries meaning if we have one human aspiration for all disciplines of religions and for all the people and different provinces within this country. Thank you very much. Your name provokes so many people. Sanjay Nirupam episode also, you had to almost get involved in a physical fight. As a loyal worker of a company or as a loyal artist to a product, perhaps it may sound rather quaint now, but one has to be loyal to the project that you work in. So that's as simple as it is. It's a dream within a dream. And I'm sure that the phenomena will go on. And this is the glory of cinema. God bless the man who started this problem. It goes on with greater glory, unfolds new people, new eras, new techniques, new styles, and variations on the same thing, storytelling and entertainment. Nice to meet you. До свидания. Здравствуйте. До свидания on departure. До свидания on departure. In Russian, congratulations, поздравляю вас. Please do take your seat. We've tried our best. I've tried to retain my loyalty with the film and do the best that we could to raise finance in a difficult market. पूरे संवाददाता सम्मेलन में दिलीप कुमार ही प्रश्नों से घिरे रहे। हालांकि इस बात का पूरा पता नहीं चल पाया है कि फिल्म रिलीज कब हो रही है, मगर दिलीप कुमार का कहना है ये कोई पहली घटना नहीं है। बर्तन है क्यारी गुलशन की, इनसे खिलती है हर कली मन की, बूंद पानी की इनमें जब खन की, क्या ही प्यारी सदा वो सन की, ताजगी जी की और तरी तन की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की। बहुत खूब। कोरा पिन्हारी का जो है मटका, कोरा पिन्हारी का जो है मटका, कोरा पिन्हारी का जो है मटका, उसका जोबन कुछ और ही चटका, ले गया जान पाँव का खटका, दिल घड़े की तरह से दे पटका, ताजगी जी की और तरी तन की, वाह क्या बात कोरे बर्तन की। बहुत। We don't get intimidated. जितना करना था वो तो सब कर लिया है, और जो अच्छा था उतना ही अच्छा करने की कोशिश की है, और अब उम्मीद है, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के आप लोगों को पसंद आए, देखने वालों को पसंद आए तो उसका नतीजा अच्छा होगा। और this great ordeal of my producer, who is like a colleague and like a brother, and I have high respect for him because he is a perfect gentleman. महाराष्ट्र में कि मिल के रहो, इंसानियत के साथ रहो, अच्छाई के साथ रहो, उस भगवान को मानो और उसके अच्छे काम करो, जो अच्छी चीजें हैं उनको जमा करते रहे, उसका प्रचार करते रहे। Maharashtrian people, the amity of the people of this country.
I was obliged by my conscience to state the innermost feelings of my heart, because being an artist and having received an award for whatever humble efforts that I have made, I thought that I may just say a few words and also speak of the conscience that fills our hearts, and I'm sure the hearts of many of you who are here. Let this country be one country. Let this talk of unity and the talk of the amity of this country and of its greatness and of its progress. It only carries meaning if we have one human aspiration for all disciplines of religions and for all the people and different provinces within this country. Thank you very much. एक था आग का दरिया जिसे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को पार करना था, मगर इस बात को 15 साल हो गए हैं। फिल्म अब जाकर पूरी हुई है। मुंबई में दिलीप कुमार के आवास पर बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी गई। निर्माता वेंकट रमन गारू के अनुसार मुख्य वजह वित्तीय संकट रहे। As a Tamil producer, I have produced and released more than 30 films in various languages and big stars. This picture, Aag Ka Darya, also has been produced by me with top artists and should have been released 8 or 9 years ago, but has been held up because of financial problems. But as usual with most of the ambitious pictures producers, were trapped by the financial crunch in the market. पूरे संवाददाता सम्मेलन में दिलीप कुमार ही प्रश्नों से घिरे रहे। हालांकि इस बात का पूरा पता नहीं चल पाया है कि फिल्म रिलीज कब हो रही है, मगर दिलीप कुमार का कहना है ये कोई पहली घटना नहीं है। Pakiza was in doldrums and lot of difficulties, but they didn't change the name, and the picture was released. The picture was good, and therefore it did the business that it ultimately did. पाकीज़ा भले ही 12 साल बाद रिलीज हुई थी, फिर भी उसके संगीत ने प्रसिद्धि पाई। आग के दरिया के साथ ऐसा नहीं है। We thought that the film was, its strong point was not the music. Although songs are there, dances are there, and pretty girls, when they dance, they all look very good. So, but for the song to be a success, one has to learn from the guys today. अगली सूचना अब फिल्म के प्रीमियर के साथ ही आ पाएगी। वो कब होगा फिलहाल अनिश्चित है। म्यूजिक के अलावा स्टोरी में भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन हुआ करता था बाकायदा। लेकिन उनमें ये था कि वो अपने ढंग की कोई कहानी लेते थे, इसमें म्यूजिक हो और गाने बजाने का एक कोई इशू हो और कोई इस तरह से बनी हुई हो, उसकी ज़मीन हमवार होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का जो प्लेग्राउंड है ना, वो हमवार होना चाहिए, उनके लिए भी और सामने वाले के लिए भी जी। और उसमें अपने वाले उसके लिए वो बहुत से पहले मोहरे लगा देते, और वो मोहरे जो है हमारा फ़र्ज़ ये बनता है या हमारा मिशन ये बनता है कि उनको डिसलॉज करें हम, और उनको डिसलॉज करके उनकी प्लेसिंग ज़रा इधर से उधर कर दें, उसमें कुछ अपने लफंगे मारपीट वाले बदमाश को इधर से उधर छोड़ दें ताकि वो कहीं किसी जगह बैठने न देना, तो उस पर उनको वो बिगड़ते हैं। ये तो मारपीट का मैदान, अच्छा दंगल आपने क्रिएट कर दिया है। डायरेक्टर के साथ आपके साथ कंबाइन करते थे सीन्स पे नौशाद साहब। तो अगर ये ना करें तो फिर हम क्या करें? बैठ के गुफ्तगू ही करते रहें। वो आप एक फ़िक्रा फिर दूसरा फ़िक्रा, उस फ़िक्रे पर मज़ीद फ़िक्रा, और काफ़ी ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशंस। और ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन, यू डोंट कॉल इट ऑन द स्पॉट। दोनों ने अपनी अपनी बातें सोच के रखी हुई कि ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पसंद करते हैं। मैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में अगर गया तो आई विल बी इन ए स्टेट ऑफ, आई विल बी एट ए डिसएडवांटेज। अच्छा, तो उसी हिसाब से फिर चल, तो मैं उसमें न जाऊँ डिसएडवांटेज। सो आई स्टिक स्ट्रांगली टू द पर्सनैलिटीज ऑफ द पीपल। वो हॉस्टाइल पर्सनैलिटीज होनी चाहिए, विजिबली हॉस्टाइल नहीं। वैसे कि इनकी बनती नहीं है, या उनकी उसकी उस साथ नहीं बनती है, या
इस तरह की कुछ बात होती है ना, तो ऐसा कुछ सोच लें। अब ये मोटी मोटी बातें मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर वो छोटी छोटी जो चीज़ें वो इनबिल्ट हो जाती हैं। और दानिश्वर आदमी जो होता है वो ऐसी ज़मीन इख्तियार करता है, पकड़ता है, इश्यूज ऐसे पकड़ता है कि उससे हटना मुश्किल होता है। कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपको काम कर कर बहुत अच्छा लगा? हिदायतकार जो जिनके साथ बहुत मज़ा आया? नौशाद साहब के साथ काम करने का मज़ा आया। महबूब साहब तो बहुत अच्छे आदमी थे। भाई ये दोनों की बनती ही नहीं हो, बोलता भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बोलते चुप उल्लू का पट्टा हो गया था, उल्लू का पट्टा। तो इन लोगों की कॉन्फ्लिक्ट कैसे जमेगी? हम नौशाद साहब को बुला लेते, भाई ये तो ऐसा ऐसा है, तो अगर ऐसा ऐसा होगा तो फिर वो कैसा चलेगा? मैंने कहा तो आप लोग हैं यूपी के, वो बातों में ही मारपीट हो जाती है, सब कुछ चल जाता है, उसमें निकालिए। उनको इस किस्म के झगड़े में फंसना बहुत गिरा गुजरता था। How was Mahbub sir as a director? And asking your opinion. आपको किन किन हिदायतकारों के साथ काम करने में मज़ा आया, अच्छा लगा काम करने में? सब ऐसे डायरेक्टर जो अच्छी तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्रेम करे अच्छी, और कैरेक्टर जो है वो भी एग्रीएबल, उनके तनाव हो, एग्रीएबल उनका क्लैश हो, और ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे। फिर उसमें नहीं होता कि कहीं तक वो ढेला तो मारेगा ही, भाई कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से होगा? तो उनको ये कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं थी आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो निहायत बहुत खुराफात बातें करते हैं, वो खुराफात मैं तो नहीं हूँ। How was Mahbub साहब as a director? मसला क्या, आपने अंदाज़े गुफ्तगू भी बदल दिया है। कुछ जानना चाहूँगी क्योंकि आपने देखा ये मेरे अंदर बहुत देर से चल रहा है, मैं हिम्मत करके अहम सवाल है जी। हाँ जी, बता दीजिए सर। और निकाह के बाद आप अच्छा, और मुझे लग रहा है कि आप खुश हो रहे हैं, हाथ तो आपने बांधे हुए हैं, लेकिन शरारत है इसमें। अच्छा पूछो, तो कुछ सवाल पूछो ना। कैसा रहा ये? कैसे रहा, कैसा रहा, कैसी कोई बचाती है ऐसी बातें पूछो, ऐसे मत कीजिए, कुछ मसला रखिए कि क्या क्या बात है जी। निकाह के बाद ही आपने दोनों ने साथ में काम किया, एक के बाद एक? तो नेचुरली निकाह के बाद ही जो कुछ बातचीत करनी हो या काम काज करना हो या घूमना फिरना हो, हम बहुत घूमे, यूरोप गए, लंदन गए, फ्रांस गए, इधर गए उधर गए, फिर वापस आए, फिर सोचा कि नहीं अभी उधर चले जाएं। तो इस तरह की आमद और रफ्त, क्योंकि मैं आई फ्रैंकली डोंट लाइक वर्किंग हार्ड, और इनको अंदरूनी तौर से ये बात पसंद नहीं है। मेरी इस फितरत पे ये she doesn't like it. So, but we like funny fun things. Anything there is fun in it. She's also like fond of sports. और स्पोर्ट्स अच्छे से दिलचस्पी भी है इनको, मुझको भी है, और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स। You see the agreeable factors and the disagreeable factors. So agreeable factors are not a problem, but disagreeable factors are really a problem. As a matter of fact, they are a pain in the neck. लेकिन we must be mindful कि disagreeable factors क्यों? They don't lend themselves to common sense. So we don't have the disagreeable factors. Or because she's so pretty, and even if she's just sitting like this, पैर पे पैर रखा हुआ है, ये then I like it. ये तो एक नेचर है ना, एक फितरती रिएक्शन है।
और शायद उनको किसी मेरी बात पे भी, हम तो पठान लोग हैं, हमारी तो कोई अदा वदा तो होती नहीं है, लेकिन खुदा जाने कोई बातें ऐसी होंगी कि जिनको ये भी पसंद करती हैं। दिलीप साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कितने सारे बातें ये एक जुमले में बांध के और इन्होंने डाल दी मेरी टेबल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। It's a dream within a dream, and I'm sure that the phenomena will go on. And this is the glory of cinema. God bless the man who started this problem. It goes on with greater glory, unfolds new people, new eras, new techniques, new styles, and variations on the same thing, storytelling and entertainment. It is a great privilege for me to be here, and I would now invite my dear young friend Rajesh Khanna to take over, because the evening is really, to all intents and purposes, come to a beautiful close after it was introduced and the program of the evening was carried on so beautifully. Fortunately, we started this film, which I felt was a strong film, because whatever is offered to an actor, one goes for a character that has got some timber in it. I liked the film's central idea, and we built a screenplay around it. We went quite fast in the first 2/3 of the film, but the rest got bogged down because of the great crunch that set into the industry. At that time, a few big films that went aground would create problems for those who were floating. So Mr. Venkatraman and the film got involved in a financial tangle with which frankly they were not legally connected. It's the financier who himself was connected, but through that kind of involvement, the film got held up into some kind of a battle between the finance and the banks, and it is in a way even still not completely come out. We've tried our best, and possibly so many people quite often think that Mr. Dilip Kumar dabbles with the pictures and pictures get into problems. And the last century, particularly the close of the century, was not very favorable to me. So, like Mr. Venkatraman himself will clarify what happened to the film. We've tried our best. I've tried to retain my loyalty with the film and do the best that we could to raise finance in a difficult market and solve the difficulties. The film is been completed, but not without pain and anguish and various interruptions. It's now, thank God, it's over. थोड़ा सा टेक्निकल काम बाकी है और वो आपको देखा होगा. This is not the full film. Whatever we could put together has been put together to give an idea to the media and to all other friends to
size up the credibility of the substance, which is what today's show is all about. We don't get intimidated. जितना करना था वो तो सब कर लिया है, और जो अच्छा था उतना ही अच्छा करने की कोशिश की है, और अब उम्मीद है, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड के आप लोगों को पसंद आए, देखने वालों को पसंद आए तो उसका नतीजा अच्छा होगा. और this great ordeal of my producer, who is like a colleague and like a brother, and I have high respect for him because he is a perfect gentleman. हाँ सर, आप बताएंगे फिल्म को बनने के बाद इस वक्त तक इतनी देरी क्यों हो गई फिल्म? आपसे मैंने कहा वहाँ कि इस फिल्म में बहुत से लीगल, फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम्स थे. न सिर्फ प्रोड्यूसर्स को थे, बट प्रोड्यूसर के फाइनेंसियर्स को भी थे, और अभी तक उन लीगल प्रॉब्लम्स का होल्ड जो है वो इस फिल्म के ऊपर है. एज अ लॉयल वर्कर ऑफ ए कंपनी और एज अ लॉयल आर्टिस्ट टू ए प्रोडक्ट, perhaps it may sound rather quaint now, but one has to be loyal to the project that you work in. So that's as simple as it is. फिल्म के टाइटल के इसमें दिलीप कुमार प्यार का दरिया ऐसा आया है. तो जी हाँ. बेसिकली आप प्रेजेंट कर रहे हैं फिल्म कंप्लीट तौर पर, या आप सिर्फ एक्टिंग में इन्वॉल्व हैं, क्या है सर? ये सही है कि दिलीप कुमार प्रेजेंटेशन कर रहा है. At a certain point of time, when everybody gets to pull the weight together or do something and initiate certain movements in favor of the product and the producer and the picture, you may take the front lead. At that time, I don't mind it. If you qualify me or my producer qualifies me into a position, yes, I will do that. I will argue his case. I've argued and stood up for the case of Mr. B.R. Chopra in a court. That's loyalty to the product. तो इसके लिए भी उसमें अगर मेरे प्रेजेंटेशन से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, हाँ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, पैसे वालों से बात करता हूँ या बैंक से बात करता हूँ, जाके उनके चेयरमैन से मिलता हूँ, उनसे एक्सप्लेन करता हूँ. तो जब कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी है उनसे या जर्नलिस्ट हैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो दिस इज़ इन लाइन ऑफ माई लॉयल्टी टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट. This was the basic trait that a faithful worker has to have, because you should give support to your producer, your project, your director. मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ एक चीज़ और मैं इश्तिहार बेच रहा हूँ ये चश्मे के, तो माई लॉयल्टी मेरी पिक्चर से नहीं है, अब वो मैं ऐनक बेचने लगा हूँ. तो जैसे अभी वो बच्ची हमारी कहती कि तुम आमुल के उसमें कुछ बोलिए, तो मैं कहता हूँ मेरा धर्म तो मत बदलो ना, मैं तो सिर्फ आका दरिया के लिए हूँ. तो बट advertising also has become a creative discipline, and I have great affection for this little child and for what she does. But what you are asking me, I don't have any hesitation in supporting my film. If they use my name, they use it anyway. फिल्म की कंटिन्यूटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा? इतने 10 साल लग गए फिल्म में, तो कुछ चीज़ें दर्शकों को सडनली अब्रप्ट लग सकती हैं. आपको लगी? आपने दिलीप कुमार को भी देखा है वहाँ, अभी मुझको यहाँ भी देख रहे हैं. मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं देख नहीं पाया. अच्छा. बहुत सारे एक्टर्स हैं. हाँ, but baby, that's a natural phenomena. People grow. She was a young girl, so she has 6, 7, 8 years elapsed during the production of the film, and she has changed. So if she changes, there it is. That's nature.
and I can't explain to it to you. फिल्म का क्या पोर्शन बाकी रह गया था? अच्छा, should I look at you all the time to answer all the questions? सर कैमरा लुक मेरे ही करें, ऑफ कोर्स सारे लुक सभी का लुक मेरे और सबको एंगल बराबर से मिल जाए। उसकी सिटी ओके है ना? ओके सर। अच्छा। If you keep on like everybody No, that I feel funny, you know. I should have one target to talk to. Maybe whoever asked the question, if you could just look at us, because then my camera gets. So that look will go more. Huh? You are in the good point. You little kitten, you are shrewder and smarter than I thought you are. कॉम्प्लीमेंट टू। हाँ सर, यू वर टॉकिंग अबाउट कौन सा पोर्शन रह गया था फिल्म का अभी? क्या कह रहे हैं, मैं मुझे भूल गया। कौन से पोर्शन बाकी रह गए थे फिल्म के जो अभी कंप्लीट हुए और कौन से बाकी हैं? क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स एक लॉन्ग ड्रॉन क्लाइमैक्स है। दिस क्लाइमैक्स इज about 1,500 feet on the field. It was a tough thing, and there were other small chapters, because when you put the film together, you find there are certain small work here and there left over. You may add a certain scene, or you may delete one. Deleting is easy because you just cut it out. But if you have to add something, then you've got to assemble the unit and do the job. जैसा कि आपकी प्रेजेंटेशन मानी जा रही है फिल्म का, आर यू प्लानिंग रिलीज की कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी आप प्लान कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, किसी तरह भी ये फिल्म ख़त्म हो जाए और मेरे हाथ से प्रोड्यूसर के पास चली जाए और प्रोड्यूसर के हाथों में वो पिक्चर वो रिलीज़ कर दे, एंड दैट्स ऑल। रिलीज के कब प्लानिंग सोच रहे हैं, कब रिलीज कर सकते हैं फिल्म? I do not know why are you subjecting me to this one single question on one given line, when this line you are supposed to represent the line of everybody. I'm sure that all of them don't have the same question in mind. It would be unfair. I don't have any hesitation in keep on talking about it. But since you know the limited role that I have to play in order to support my producer, I have to extend myself, stretch my hand, move my feet sometimes, or say something like I'm saying now. That's just about the name of the game. And that is how we term the loyalty of a man to his product. Sir, do you think the film is relevant after 14 years, and everything? Given today's cinema, given the sleek techniques that are there, do you think it will be something that the audience will watch? इतने सारे क्वेश्चन तुमने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए। I can't decipher it. Better you ask me a simple question. Do you think the movie is relevant today, sir? As in, do you think the audience? Certainly, any art, any merchandise of entertainment is relevant. As a matter of fact, so many films that I have seen in recent years may not be termed as relevant, but they are films for entertainment or films for engagement. Intellectual engagement or mental engagement. Personally, what is this film to you? You've been working on it for like so many years now. What is it for? Now that it's complete, how do you feel? You see it and tell me. For you, I would. No, for me it was an engagement, an undertaking, and I take it seriously because there is a moral aspect of a commitment. So for me it's far more important that it should get completed and it should get released. So also now everybody is going to be talking about your Rajya Sabha nomination. How do you think you would be able to help maybe the entertainment industry? The same subject we are talking, we be over there and you were there right in front of me, and now you are repeating the questions. Sorry, but I didn't have a camera. No, I thought I would get in there then. Then you do something about it. Tell me. सर, इसका एक पहलू ये हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मल फिनोमेना नहीं रह चुका है, फाइनेंसर्स, इसके प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं, तो अभी फिल्म इंडस्ट्री आपसे कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखेगी कि आप सेंट्रल में जाके कुछ इस तरह के कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएं ताकि इस तरीके की डिफ़िकल्टी और किसी प्रोड्यूसर या और किसी फिल्म पर ना आए। I will commit this instruction to my memory and try and remember it. तो सर, आप कुछ कमिट करना चाहते हैं मीडिया को? नहीं, वो कुछ भी कहना ऐसा फुलिश चीज़ होगी। जो भी वैलिड इश्यूज़ हैं
industry के, the industry has got its own stewards and captains, and they've got their own movements. However, if there is anything that I can do, if I can do it, then I'll do the best that I can. सर, ये देखा गया है कि इस फिल्म में हीरो के लिए कोई इतना ज़्यादा काम नहीं बचा है, सारे एक्शन सीन्स, सारे इमोशन सीन्स आप पर ही शूट किए गए, इसकी क्या वजह है? Because I was available all the time. Sir, Lehre program is completing 100 episodes. Can you give best? What is Lehre? Bajaj की Lehre program. Huh? Sunny, I've heard the name, but I don't really know Lehre क्या है. यानी कोई फिल्म है? Sir, ये program है, film-based program है. So I wish the best. Yeah, we are completing 100 episodes. So we need best. all the best to you. All the best to you and to Lehre or whatever. और कोई है? जी सर, एक सवाल है आपसे। नहीं 2 मिनट का था। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। देवदास पर एक नई फिल्म बनने जा रही है जी, तो आपको क्या लगता है, ये 9th फिल्म देवदास पर बनने जा रही है, तो आपको लगता है कि ये फिल्म वही टेस्ट ऑडियंस को अभी भी बरकरार रख पाएगी? उससे बेटर भी हो सकती है, उससे बेटर भी होगा, बिकॉज Devdas, in which I worked, was more than 45, nearly 50 years ago, and a whole sea change has taken place, and technique has developed so much, so many, the instrumentation is so versatile that is available and at the disposal of the picture maker. There's so much that has developed, so there is no reason why we should not believe that, given their mind to it, and if they put in their labor, they can do a much better job than we could do. लेकिन उस दौर के दिलीप साहब तो अवेलेबल नहीं होंगे सर? हाँ जी, उस दौर के दिलीप साहब तो अवेलेबल नहीं होंगे देवदास ऐसे और दिलीप साहब बहुत से निकल आएंगे। हाँ, सर, ये रोल शाहरुख खान जी कर रहे हैं, ये रोल शाहरुख खान जी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता था आपसे, वो जो रोल किरदार जब आपको निभाना था, तो किस तरीके का आप कुछ अंदर से कुछ रिसर्च या कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ी होगी आपको उस रोल को ढालने में अपने आप में? See, one works at a character. I was actually an athlete and an outgoing person, लेकिन हर पिक्चर में जाके मुझे आखिर में मार देते थे। I went out of the ways of dying. कैसे कैसे मरेंगे? इसमें एक हिचकी ली, मर गए, कैसे कर लिया, और मैं ट्रेजेडियन मशहूर हो गया। तो not because I was basically a person who was morbid and brooding all the time. आपने सवाल क्या किया, मैं उसके बारे में भूल गया। What am I answering? You said something. You said something. It's about the role. वो शाहरुख खान के रोल के बारे में। It's about the role. आप जब देवदास के रोल के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी, जो शाहरुख खान को वो सब फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए? There is no doubt that Devdas was an introvert, and he, in fact, in my words, he just drank and drank and drank himself to death. But I had to develop a belief in him and sympathize with him, go a little beyond that and say that's me. So you got to divorce your personal aptitude and your personal personality to develop what is proposed to you. And there is, of course, lot of silent work that's done within yourself, and so much can be done by negotiating with colleagues that you work. That is, if you are doing something which is so much outside the ambit of your personality. Now, I have done some silly things, like I went into a historical film. वो भी ले जाओ, ये दफ्तर बेमानी, हाँ कोई अकबर आज़म का वलीअहद नहीं है, मुगलाई उसका ठाठ और उसकी बैठक जो है वो ऐसी थी जो मुझ में थी ही नहीं। तो ये तो ऐसा हुआ कि लोहे के चने चबाने हैं। But these
challenges a creative actor or an actor who's enterprising. He invites such challenges to try his mettle or something that is outside the chemistry of his own personal individual self. And like Naya Daur or even Ganga Jamna, अब ये मेरे ज़ाती पर्सनैलिटी के बाहर की बातें हैं, but an actor may take it up as a challenge, and it can be dangerous also, because you can fail, and if you fail, then you had it. So I wish all the best of success to Shah Rukh, because I know he's a talented fellow, and he's very obstinate in the sense he is also determined to do it. And there is no reason to believe that he will not do it, and not even better what was done by Bimal Roy and Dilip Kumar put together jointly. यानी नाम इन्होंने दिलीप कुमार कब रखा, इनसे ज़्यादा सेकुलर कौन हो सकता है? कब रखा ये देखो, एज टाइम देखिए कब रखा, तो मैं सोचता हूँ और इसमें ये सब तो है ही, जो देखा भी जाता है पीछे पीछे आप चले। Oh, it's lovely. Lovely to see you. I was there for the Hajj and How are you? I was trying to know who you are, but then I thought like if like I had come the other day to your house, because after a long time I'm seeing you here. So how are you keeping? Surviving. Surviving pretty well. Yeah. Let God be the caretaker. I don't know much about this sport. Sadhu Sahib has been दुआ करें हम आगे। सूख गई कब की? जिंदा है भी वास्तव में बहुत अच्छा। ये मेरी बेगम है। इनको वहाँ ले जाके सारे भी ग्रुप में लेके आप मैं भी आ रहा हूँ। मेरा होगा भी मैं तो इन लोगों से मिलने का मेहमान। आपको अब सबसे पहले मैं कश्मीर के लिए Mahmoud Gaddafi, ambassador of Arab States Mission. Yeah, I am from Libya also. Gaddafi. Nice to meet you. This is my wife, Sahir. Please do sit down. Thank you. I'll sit down here. Yes. What did you say? Congratulations from Russian embassy. My Oh, ambassador welcome. asked to convey his he cannot come because now he's there seeing our government delegation. I'm council. Because today is 37 years ago, I came first time to Bombay. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you, In our sir. film, Indian film is very famous as you know. Once again, Nice to meet you. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания on departure. До свидания. In Russian also, congratulations, поздравляю вас. Please do take your seat. Thank you. Good evening.
अच्छा, ये आपकी टाई और आपका हाइक की सही था? सुल्तानिया ने भी किया आपने करवाया है डेकोरेशन? I've come here dozens of times. What a handsome man. सफर में क्या हो गया देखिए. कल रेहान देख रहा था कुछ एल्बम्स आपके. अच्छा. एडजेक्टिव्स ये है वो आजकल के बच्चे हैं. हाँ. Wow, man. Is he good? You know that kind of a thing? बहुत पसंद आ रहा था उनको. All the suited and booted photographs में. जबकि गालिब जवान है. आजकल के ज़्यादा अच्छे हैं. आप दोपहर को तशरीफ लाई जा रहे जी कब? शाम शाम को. जल्दी से ये भागे घर जाना है. पंजाब आ रही है. छोटी सी क्वालिटी. I just felt like saying something, so I said it. बाद में उन्होंने कहा दुनिया आपकी क्या की स्पीच मेडल आलिया बाजार मेडल सोचा क्या मेडल मैंने कहा मेडल तो निकले वन ऑफ द बड़ी डिबेट शुरू हो गई. Congratulations. How do you do? I'm the ambassador of Lebanon. كيف الحال؟ طيب عظيم جدا. الله يخليك. شكرا. مبروك. नहीं वो पहले से वो दे देने दीजिए. यूसुफ भाई को दे देने दीजिए, उसके बाद ले जाएंगे आप. सही साहब. शबीर बहुत अच्छी हमारी शबीर. That's right. It was. That's what I believe. I think so. I just come today. नहीं तो मैं तो फिर सारा दिन. बड़ी शख्सियत.
मेरा मकसद वहाँ पे फ्लैट पे एक आध दफ़ा डिनर में मुलाकात हुई जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खैर से निभाए, ये दुआ कीजिए इस्लाम कि इसमें हाँ उसके बाद आप गई वापस कभी अभी तो हमारा दामाद ये काम आएंगी यहाँ के भी और वहाँ के भी Excuse me, Vita? You knocked me down almost. How are you? I've been instructed. जी 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 ये मेरी दीदी है माशाल्लाह I am the ambassador of Palestine. God bless your country, bless your people, bless your leader. It's nice to meet you. It's okay. What's on? Yes, we meet again. She was so ना 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 करके जब पूरी हो रही है और फिर आखिर जहाँ कर रही है तो एक आम हो चुकी है जल्दी से सर मैं तो देखता हूँ I hope the performance will be quite outstanding. I hope the moment when they will start to talk. Realized for it when they said this is the confiscation of your speech.
Excuse me. हो गया? Excuse me. आपकी फिल्मों के डायलॉग एक एक हमें याद है। अब मैं सब भूल गया। करेंगे क्या? लेकिन आपके हाइट्स पे टच उन बंदियों को How pleased I am that you are here. I know some especially asked them. बहुत खुशी है। What do you do, sir? What do you do, sir? I look forward to visiting your country sometime. When he takes me there. He knows about that. Okay. And the pleasure of meeting is nothing new. हमें चाय थैंक यू सो मच। चेष्टा करें सकीना बहादुर जमाने से। I used to speak very, not very fluently, लेकिन जब नितिन बाबू के साथ काम करते थे, विमल रॉय के साथ তাহলে জিজ্ঞেস করতাম যে এখানে ধান কি জানতা हूँ মাছের জল পাবে কি পাবো কি মাছের ঝোল आज अच्छा दूसरे दिन निकाल दूसरे दिन मैं कह रहा था मेरी And I am with you, very, very good company. But before you try, you should get something filled here. Generally, I mean, because of the smallness of the size, more relaxed kind of atmosphere. Oh yes. They used to pursue me wherever I go. former general secretary of district I'm the principal of DOL. So the students came, yes. And the situation Actually, your name provokes so many people. Sanjay Nirupam episode also, you had to almost get involved in a physical fight inside the house. twice or thrice it happened. It's very good that you have come. Service people really. बहुत शुक्रिया। सना जी, जब आपका नाम आता है तो दिलीप साहब का नाम भी आता ही है, और आप ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया के अहम एक्टर की शरीके हयात हैं। तो क्यों ना गुफ्तगू भी उसी मौजू से शुरू की जाए? क्यों नहीं, क्योंकि ये तो मेरा बहुत पेट और फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बिस्मिल्लाह। जी, जब
आपको पहली बार खबर मिली कि आपका निकाह दिलीप साहब के साथ होने जा रहा है तो आपकी ज़ुबान पर पहला जुमला क्या था? देखो ये तो अजीब सी बात है, अब इसमें अगर आपको सुनाऊं तो ये तो 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ये कि जब मुझे पता चला कि मेरा निकाह होने वाला है, मैं तो 12 बरस की उम्र से जानती थी कि मेरा निकाह यूसुफ साहब से होगा, क्योंकि मैंने ये ठान ली थी, ये बात ठान ली थी 12 बरस की उम्र में कि अगर मैं निकाह करूँगी और अगर मैं शादी करूँगी किसी से तो इंशाअल्लाह वो यूसुफ खान से ही होगी। दैट वाज माय ड्रीम, और मेरा ड्रीम जो है वो हकीकत में रियलाइज़ हुआ है। बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि लोगों की जो हसरतें हैं कभी तमाम पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी लकी हूँ और खुश नसीब हूँ कि जितनी हसरतें मेरी रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरी हुई हैं। जी बिल्कुल। सारा जी, दिलीप साहब की शख्सियत एक सहर है। चूँकि ये प्रोग्राम उर्दू में है, उर्दू जानने वाले खासकर दिलीप साहब में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तो यूँ तो उनको काफ़ी बातें पता सारी दुनिया ही दिलचस्पी रखती है, वो शख्सियत ही ऐसी है माशाअल्लाह। तो शरीके हयात होने के तौर पर कोई ऐसी बात जो हमारे नाजरीन को आप बताना चाहेंगी दिलीप साहब के बारे में? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 12 बरस की उम्र में ही ये तसव्वुर कर लिया था कि दिस इज़ द मैन फॉर मी। तो एक इतने यंग इंसान में, मेरे में, यानी कि कोई एक ऐसी बात होगी वो भांपने के लिए, वो जांचने के लिए कि मैं जिस इंसान को देख रही हूँ, यानी कि दिलीप साहब को जब मैंने किसी महफिल में देखा या अपने घर पे आते जाते देखा, तो मुझे यूँ लगा कि ये इंसान जो है ये सबसे हटके है इंसान, इसमें कोई ख़ास बात है, और इनका जो एक पर्सोना जो है उसका असर जो है मेरे यंग और मेरे इम्प्रेशनेबल माइंड पे हुआ। तो मेरे ख़्याल से दिस वाज इंट्यूशन के दिस इज़ अ पर्सन जो कि बिल्कुल अलग हैं, और ज़िंदगी में चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि यही मेरे साथी हों। और इनकी जो बात जो है मुझे सबसे अच्छी जो लगी, जब मुझे याद है मुग़ल आज़म का सेट लगा हुआ था, और हम लोग हर साल जो है, मेरी वालदा और मैं, मेरे भाई, मेरी नानी, हम सब लंदन में रहा करते थे। हमारी पढ़ाई वहाँ हो रही थी, हम दोनों की, मेरे भाई की और मेरी। वहाँ के स्कूल में हम पढ़ते थे एज डे स्कॉलर्स, और वहाँ पे घर लिया हुआ था। और अक्सर जो लंबी छुट्टी होती थी जुलाई से सितंबर तक, तो मेरी वालदा जो हैं वो हमें पूरा यानी कि यूरोप दिखाते हुए, और ये हर साल का मामूल था या हर दूसरे साल का मामूल कि यूरोप होते हुए और फिर हम अपने घर आते थे हिंदुस्तान। तो यानी कि वालदा की यही कोशिश रही हमेशा कि बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ तरबियत हो, तालीम हो, लेकिन जो हमारा देसीपन है, जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारी असलियत है, जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता है, उससे कोई हमको यानी कि गफलत ना हो। तो हम पूरी छुट्टी जो है इस तरह गुजारते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारते थे। उस दौरान मुग़ल आज़म का सेट लगा हुआ था ऐसी एक छुट्टी में शीश महल, और मेरी वालदा के चंद फ्रेंड्स, एक लेडी थी, बहुत करीब थी उनसे, और लंदन से वो आई और रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ वो रखती थी, और उन्होंने कहा कि रोशन, मेरी वालदा नसीम जी का नाम रोशन था, तो हमें शूटिंग देखनी है, मुग़ल आज़म की शूटिंग है। तो फ़ौरन आपा जी ने यूसुफ साहब के यहाँ टेलीफ़ोन किया, और हम लोग गए हमारी गाड़ी में बैठे हुए। अब जब हम पहुँचते हैं वहाँ सेट के ऊपर, जो स्टेज है ना उसका दरवाज़ा, तो उस पर यूसुफ साहब खड़े हुए थे इस तरह ऐसे, और सफ़ेद शर्ट और पैंट पहने हुए, और मैं बहुत I was a very young girl. 12 साल की, तभी आप 12 साल की उम्र की? नहीं, जब तो I would have been 13 और something like that. 12 साल में तो पहले मैंने इनको देखा था, लेकिन उस दिन की बात सुना रही हूँ। तो जैसे मैंने इनको देखा, I said, oh my God, इनका तो पैकअप हो गया, you know. And I was a film fan, यानी कि जो भी रिसाला आता था लंदन में, उस पर लपक के मैं देखती थी कि क्या आ रहा है उसमें, क्या हो रहा है, क्या शूटिंग है, कौन से स्टार्स हैं। तो फ़ौरन यूसुफ साहब ने मेरी वालदा को और मुझको देखा, आपको याद तो होगा नहीं, तो
गाड़ी की तरफ बढ़े और ही लीन इनटू द विंडो एंड सेड के आपा जी, ये नसीम जी, शूटिंग तो पैकअप हो गई है मेरी, लेकिन आप अंदर चलिए और वो कव्वाली गाना कुछ चल रहा है। और मुझे याद है कि वो सो क्रेस्ट फॉलन के यूसुफ साहब की शूटिंग हो चुकी है। बहरहाल हम लोग अंदर गए और वहाँ इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया सबसे, और कोई कव्वाली चल रही थी वहाँ, जो मुझे तो होश ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये सिर्फ एक ख्याल था कि मैं साहब को देख रही थी, यू नो, कि आई वाज सच अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ हिज। तो वहाँ वो शूटिंग हमने देखी, तो वहाँ पे भी मुझे आई थॉट कि दिस इज़ समबडी हु इज़ सो सिंपल एंड सो नाइस, सो अनअस्यूमिंग, और यही उनकी क्वालिटी है जो मुझे हमेशा, यानी कि जिस क्वालिटी ने मुझे जीता है, इनकी सिंप्लिसिटी। आप देखिए कि पहनावा भी इतना सिंपल है, ये नहीं कि इनको अच्छे कपड़ों की मालूमात नहीं है, लेकिन एक से एक सूट है। अपने शूज़ और टाइज़ और हैंकीज़ जो हैं, इनका कलेक्शन माशाल्लाह से वो एक ट्रेजर है, क्योंकि बहुत शौक़ से अपने कपड़े वगैरह ये रखवाते हैं। लेकिन अक्सर जो इनका पहनावा है वो सफ़ेद एकदम सिंपल है, और वैसी उनकी लिविंग है, कभी भी शोर शराबा नहीं है। खाने के ऊपर खाना हम बिल्कुल हल्का बनाते हैं, और जो इनकी पसंद की चीज़ें हैं वो कभी कभार जैसे बनती हैं ईद त्यौहार पे, बिरयानी, पुलाव और आलू गोश्त वगैरह वगैरह। बेसिकली हम लोग फूड ईटर्स हैं, वी लव टू ईट। और फिर ये भी है कि वेजिटेरियन भी इनको बहुत पसंद है, जैसे सेव पूरी और दही बटाटा पूरी, दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ। तो मेरी वालदा और यूसुफ साहब की वजह से और मेरी नानी की वजह से हमारा घर का क्विजीन जो है, जो पकवान है माशाल्लाह, काफ़ी यानी कि डाइवर्स है। तो घर पे जैसे चाइनीज़ भी बनता है तो बिरयानी भी बनती है और डोसे भी बनते हैं, इस तरह से। और इनके अपने जो कंकॉक्शंस है ना, रेसिपीज सूप वगैरह के लिए, आपको ताज्जुब होगा कि कई सूप्स हैं जो इन्होंने खुद इजाद किए हैं। क्या बात है। हाँ। और बेसिक उसमें जैसे चिकन सूप है तो उसमें किस तरह से भिंडी का इस्तेमाल, तो भिंडी चिकन सूप हमारे यहाँ एक बनता है, फिर खुबानी सूप बनता है। और यहाँ तक कि जब मैं बीमार हुई, एक ऐसा वक्त आया कि मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया था और मुझे ये लोग लंदन ले गए थे मेरे इलाज के लिए। वहाँ लंदन क्लिनिक में मैं रहती थी, एडमिट थी राधा। अब साहब ने वहाँ के रेस्टोरेंट्स में जाके, और जिस घर पे हम रहते थे वहाँ ऐसे कंकॉक्शंस डिवाइस किए इन्होंने और मेरी वालदा ने कि उस रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ वो नाम रखा गया कि दिस इज़ दिलीप कुमार स्पेशल। एक सफ़ेद चिकन होता था, बिल्कुल कम घी वाला, बिल्कुल ही हल्का सा उसमें मक्खन पड़ता है, और हरा धनिया है, हरी प्याज है और थोड़ा सा मक्खन एंड कैप्सिकम। तो दैट इज़ दिलीप कुमार स्पेशल चिकन। क्रिएटिविटी सिर्फ फिल्म्स तक नहीं लिमिटेड रही। नहीं, बहुत क्रिएटिविटी है। अभी जो आप लोगों ने जिक्र किया, इनसे इंटरव्यू लिया कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्स स्टार रहे हैं, हाँ जी। लेकिन बहुत लोगों को शायद ये नहीं मालूम हो और कुछ को मालूम हो कि बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी हैं ये, और अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर शी हैज़ बीन अ ग्रेट क्लासिकल आर्टिस्ट। शमशाद बेगम अब्दुल वहीद से लाइव गाती थी कोलंबिया के लिए, कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए। तो अम्मा जी जब रियाज़ करती थी तो यूसुफ साहब साथ में बैठ के जब गुनगुनाते थे तो कहते थे कि सुभान अल्लाह। मेरी अम्मा जी कहती थी, यूसुफ मियाँ आपके गले में ऐसी अच्छी मुर्कियाँ हैं, इट इज़ गॉड्स गिफ्ट, आप ज़रूर सीखिए, आप ज़रूर सीखिए। बहुत खूब। हाँ, बहुत अच्छा। और सितार भी बहुत अच्छा बजाते हैं, वो तो आपको इल्म होगा कि जब कोहिनूर की शूटिंग हुई थी, आई हैव गॉट टू लर्न दिस। मुझे बाद में पता चला कि जब शूटिंग हुई तो इन्होंने मेरे ख्याल से चंद महीने या एक साल भर खूब ऐसी प्रैक्टिस की, और वाकई यानी कि जो सरगम वगैरह जो आलाप इन्होंने सब प्ले किए हैं वो अपने आप इन एक्चुअलिटी प्ले किए हैं। अक्सर हम लोग तो है ना वो हाथ घुमा देते हैं सितार के ऊपर, पर इन्होंने तो उस तरह से इन एक्चुअलिटी प्ले किया है। So he is very talented musically also.
एक ही इंसान में अल्लाह पाक ने ढेर सारी खूबियाँ दे दी। बिल्कुल। तभी तो हम सब खिंचे जाते हैं उनकी तरफ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब मैं आपसे थोड़ा जंगली के बारे में पूछना चाहूँगी। हाँ, जंगली। आपकी फिल्म जंगली आई 1962 में। जी, सही। वो दौर था जब ब्लैक एंड वाइट सिनेमा से हम कलर सिनेमा की तरफ जा रहे थे। एंड वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू जंगली। जी, जंगली पहली कामयाब फिल्म थी ईस्टमैन कलर की। सही बात। और आप एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही थी उस वक्त के शम्मी कपूर। एक तरफ आपकी खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे तो दूसरी तरफ कामयाबी आपके कदमों को चूम रही थी, तो कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बस यही एक ख्याल था कि खूब मेहनत करनी है मुझे जी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। और ऐसे ऐसे मौके हुए जबकि मैंने अपने आप को काफ़ी यानी कि शर्मिंदा पाया, क्योंकि ये एहसास था कि वाकई इतनी कमी है मेरे में। ना तो मैं डांसर हूँ, ना तो पूरी तरह से मैं ज़ुबान से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि अब जितना मैं उर्दू बोल लेती हूँ या हिंदी बोल लेती हूँ, उस वक्त यूँ होता था कि क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश और फ्रेंच रहा एंड लैटिन जो कि रूट लैंग्वेज है इंग्लिश की और सब यूरोपियन लैंग्वेज जर्मन, इटालियन, फ्रेंच की, तो वो संस्कृत की तरह है, लाइक संस्कृत। तो उस तरह से इट इज़ अ रिटन लैंग्वेज। तो मैंने वो भी सब्जेक्ट लैटिन का लिया था, बट आई हैव स्टडीड ओनली अप टू मैट्रिकुलेशन, क्योंकि मैं जैसे ही मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम मैंने दिया, मैंने इतनी भी फुर्सत नहीं पाई कि मैं अपने रिज़ल्ट मालूम करूं, और मैं भाग के छुट्टियों में यहाँ आ गई। लंबी छुट्टी जो मैंने जिक्र किया, लंबी छुट्टी हमारी होती थी, तो यहाँ जैसे आई हूँ तो मुझे 5, 6, 7 ऑफर्स मिल गए, जिसमें से एक जंगली था। और उस वक्त है ना, ये एहसास कुछ नहीं था कि शम्मी साहब को मैं बहुत एडमायर करती हूँ। देखिए अब इसी महीने की 21 तारीख में ही हैज़ सेलिब्रेटेड हिज 75th बर्थडे, एंड यूसुफ साहब को वो बड़े भाई की तरह मान देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। और यूसुफ साहब और हम गए, उनकी सालगिरह 75th मनाई उनके साथ। वी फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज इन दोनों ने जब इनकी मुलाकात हुई वो देखने काबिल थी। इट वाज सो फुल ऑफ इमोशन एंड लव। एंड उस वक्त मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था, ना एहसास था कि शम्मी साहब यानी कि किस दर्जे के हीरो हैं या क्या काम करते हैं, क्योंकि मेरी दुनिया के लिए वो यही था कि एक दिलीप कुमार हैं जिनकी फिल्म मैंने देखी है आन, लंदन में, और बस वो ही मेरे लिए एग्जिस्ट करते थे। और सुना हुआ था कि देवानंद साहब हैं, राज कपूर साहब हैं, जिनका जिक्र था हमारी ज़िंदगी में, सुनी हुई बातें थी कि दे आर मेजर स्टार्स। लेकिन कहूँ कि जुनून अगर किसी का था तो सिर्फ यूसुफ साहब का हमारे दिमाग के ऊपर। तो शम्मी साहब के साथ काम करते हुए मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मैं इस ओ में नहीं थी कि ओ मैं शम्मी जी के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से वक्त कुछ ऐसा होता है कि वो शम्मी साहब का सुपर स्टारडम जो है, मेरे ख्याल से उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया आफ्टर जंगली, क्योंकि उस वक्त तक मेरा ख्याल है वो फिल्म्स जो कर रहे थे वो जैसे जंगली पूरा कलर का एरा ले आई, एंड इट ऑल्सो पुट कश्मीर ऑन द मैप। उसके बाद आप देखिए जंगली के बाद कि हर फिल्म जो है वो वहाँ शूट हो रही थी। और ईस्टमैन कलर फिल्म जो है दैट वाज ब्रॉट इनटू द फोर विद जंगली, क्योंकि अनटिल देन प्रिंट बाय टेक्निकलर सब लंदन से होता था। यहाँ तक मेरा ख्याल है गंगा जमुना आपकी प्रिंट बाय टेक्निकलर लंदन हुई है, और उससे पहले जिसमें मेरी वालदा काम करने वाली थी और नहीं किया उन्होंने, झांसी की रानी भी प्रिंट बाय टेक्निकलर थी, दैट वाज आल्सो लंदन। सो दिस इज़ रियली, आई मीन वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री विद जंगली। बिल्कुल। और उसके साथ साथ क्या हुआ जंगली के साथ कि जैसे कि कलर आया, उसका दौर आया, तो उसी तरह से कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, गेटअप्स, मेकओवर्स, क्योंकि मेरी वालदा ने, आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट लेडी जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करने शुरू किए मेरे लिए। ज्वेलरी जो मेरे लिए बनती थी फिल्म्स के अंदर वो कस्टम मेड होती थी जी। और
हैरानी की बात है कि जितेंद्र के जो अंकल होते थे वो ज्वेलरी उन्होंने ही ब्रॉट द ज्वेलरी यू नो टू माय मदर्स प्लेस। फिल्मी जो ज्वेलरी होती है और जितेंद्र मुझे सुनाते हैं कि ही हैड कम टू मीट मी अलॉन्ग विथ हिज अंकल एट दैट टाइम। तो आपा जी मेरी वालदा यानी कि ना सिर्फ कॉस्ट्यूम्स बनवाती थी, ज्वेलरीज भी बनवाती थी, असली भी मेरी एंड ऑल्सो फॉर फिल्म कस्टम मेड। और आज तो आप देखिए कितनी सहूलत है कि कितने ही डिज़ाइनर्स हैं। तो आपा जी स्टार्टेड द आई मिलन की बेला साड़ी ऑल्सो यू नो क्रेप सिल्क शुरू कर दिया। क्रेप सिल्क वो लाई इनटू फैशन डिज़ाइन एंड विद ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी जो मेरे घर पे ही मेरे एम्ब्रॉयडर्स होते थे। तो घर पे ही वो सब तैयार होती थी चीज़ें। तो शी इज़ द वन हु पुट यू नो फैशन डिज़ाइनिंग ऑन द मार्क इन फिल्म्स।